चलिए सर, residential, commercial, industrial, and then vacant land. These are some of the transactions. हमारे साथ सुरजीत सरकार भी जुड़ गए हैं, हमारे कलकत्ता से हमारे मित्र। ये बेसिकली इस तरह में हमने पूरी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को डिवाइड किया है। Then, friends, this particular chart in itself clarifies the entire gamut of transactions relating to real estate. Starting with the first vertical, construction and sale of residential/commercial apartments. अगर हम कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करके बेचते हैं तो दो प्रेपोजिशंस बनती हैं। या तो हमने जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है वो हमारे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले हमने कंसिडरेशन रिसीव की है उसके लिए, या हमने कंसिडरेशन आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद रिसीव की है। अगर तो हमने पहले रिसीव की है कोई भी कंसिडरेशन, even for ₹1, the consideration is received before the completion of the contract, before the completion of the construction or the first occupation. I will deal with these two words also, completion certificate and first occupation. The tax is leviable if any consideration is received before the completion or first occupation, that those transactions shall be excisable to taxable to GST, liable to tax to GST before, if the consideration is received before completion certificate or first occupation. If it is done after completion certificate or first occupation, then it is a schedule 3 transaction that becomes land, building, construction. Then it is not subject to GST, outside the preview of GST. ठीक है जी? Then we talk about sale of land. If you have listened to me very carefully, you have developed and sold plots. Development of plot में आपके पास you have a vacant piece of land, say for 10 bigas or say 10,000 square yards for that matter. Now you have divided that 10,000 square yard into smaller plots. You have made out roads between the plots. You have carved out some of the common areas also. You have developed the plots. That is what development of plots is concerned, is considered to be. Even that is also done. That would be not leviable to GST. हालांकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर ये भी बोलते हैं कि भाई if you have developed the plots, so this would not be considered to be sale of vacant land only. But my humble opinion would be that even some boundaries are constructed, roads are made out just to sell the vacant land, then it shall squarely be falling into, even there are advance rulings also, only this is sale of plot of lands only, no GST shall be chargeable to it. Are you with me? Yes, please. I request maximum people to keep their cameras on. I request everyone, so that they are more attentive what they are listening to. Give your Lalit Anand ji is here. Welcome, Lalit ji. Yeah, thank you, Naveen sir, also for looking at me. Though I may not be much pleasant to eyes, but please look at me. And you are little used to also. Ji. Then next aspect with respect to real estate transactions, joint development agreements. जो मेजर कंसर्न है आज हम सबका वो है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स की। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट आता है इसमें एक तो वो टैक्सेबिलिटी है उसकी, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट।
इसमें कोई डाउट नहीं है। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी आती है। अवकाश जी जुड़ गए हमारे बुलंदशहर से, हमारे साथी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवकाश जी। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी भी आती है विच इज लिवेबल टू जीएसटी, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब हम एक एक करके हर आइटम को डिटेल में समझते हैं, और इसको यहां पर आज हमारा टारगेट है कि अगले 1-1.5 घंटा जो अब हमारे पास बचा है, इसमें अब हम पूरी की पूरी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के जो पूरी की पूरी गैमेट है, पूरा का पूरा कानून है इसके ऊपर, जहां जहां क्लैरिटी है वो भी समझ लें, जहां जहां ग्रे एरियाज हैं वो भी समझ लें, और आपके जो भी सवाल होंगे, हम वो भी टेकअप करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो आपका कोई भी सवाल है वो भी आप डिजाइन करें साथ साथ, हो सकता है उसका जवाब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन मिल जाए, हो सकता है कि वो ना मिले, हम आपको सेपरेटली मैं उसको जवाब दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एफएसआई, कारपेट एरिया, अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। शुरुआत करते हैं अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। कोई भी रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट जिसका कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर का हो, नॉन मेट्रोपॉलिटन में होगा, मेट्रोपॉलिटन में 60 स्क्वायर मीटर का हो, और वैल्यू दोनों में 45 लाख रुपए तक की हो। मेट्रोपॉलिटन में 60 जमा 45, नॉन मेट्रोपॉलिटन, अवकाश जी जहां आप बैठे हैं, ये अभी जो है अवकाश जी बुलंदशहर वाले हमारे, तो ये जो बुलंदशहर है ये अभी जो है ये एनसीआर में आने की पूरी तैयारी में है। सिकंदराबाद को इंक्लूड करेंगे डिस्ट्रिक्ट को, सिकंदराबाद और बुलंदशहर तक। तो अगर ये आ गया, अभी तो ये नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन अगर ये आ गया तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएगा। अभी आपके यहाँ 90 मीटर और 45 लाख की यूनिट को हम अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर वो दिल्ली में है, जैसे नोएडा में है, गाजियाबाद में है, या हमारे गुड़गांव में है, या हमारे फरीदाबाद में है, तो वो जो है मेट्रोपॉलिटन होगा, और उसमें अफोर्डेबल बनाने के लिए 60 प्लस 45 लाख, अप टू 45 लाख। तो ये अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट क्या है हमने देख लिया। कारपेट एरिया में दीवारें इंक्लूड होती हैं, है ना जी, एक्सटर्नल वॉल, सर्विस शाफ्ट, बालकनी, वरांडा एरिया छोड़कर बाकी सब जो 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 इंटरनल पार्टीशंस के वॉल्स हैं वो भी कारपेट एरिया में इंक्लूड होते हैं। तो कारपेट एरिया की डेफिनेशन भी हमारा, वैसे तो मैं आपको बता दूं मित्रों, जो ये जो नोटिफिकेशन है आपकी, जिस नोटिफिकेशन ने ये सारी कहानी बदली है, एक सेकेंड, जी। तो इस नोटिफिकेशन में जितने भी मेजॉरिटी वर्ड्स यूज किए हैं, फ्रेजेस यूज किए हैं, उसका जो मीनिंग है उन्होंने रेरा से, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट से बोरो किया है इन जीएसटी। अपना जैसे कारपेट एरिया का मीनिंग इन्होंने यहां नहीं दिया, ठीक है जी। बहुत सारे और जैसे प्रमोटर का मीनिंग नहीं दिया, डेवलपर का मीनिंग नहीं दिया, वो भी रेरा से ही बोरो किया गया है। अब जैसे कारपेट एरिया का जो मीनिंग है वो है नेट यूजेबल फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट, net usable floor of an apartment excluding the area covered by external walls, area under service shafts, exclusive balcony, veranda, exclusive open terrace area, ये सब हटाकर, but includes the internal partition walls of the apartment. So that is the carpet area. And यहां पर हमारे पास अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में कारपेट एरिया वर्ड यूज हुआ है 90 स्क्वायर मीटर या 60 स्क्वायर मीटर। एफएसआई जो है उसकी डेफिनेशन हमें जो दी गई है, मींस द रेशियो ऑफ ए बिल्डिंग्स टोटल फ्लोर एरिया टू द साइज ऑफ द पीस ऑफ लैंड। एफएसआई को अगर मैं आम भाषा में कहूं तो कितना कंस्ट्रक्शन मुझे अलाउड है ऑन द पीस ऑफ द लैंड, दैट इज द रेशियो, दैट इज द फ्लोर स्पेस इंडेक्स। एनीवेज, मूविंग अहेड, देन few other terms which have been used, मैं आपको लेकर चल रहा हूं जी पहले यहां पर इस पोर्शन में, कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल अपार्टमेंट। तो इससे रिलेटेड जितनी डेफिनेशंस हैं
वो देख रहे हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी, उसकी वैल्यूएशन, वो सब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? ये सारे देखिए, unless you don't understand the phrases, the terms used in defining the taxability, you will not be able to identify for which project it is referred to. So real estate में भी जो real estate project का मतलब है वो भी रेरा से ही लिया जा रहा है. Residential real estate project shall mean a real estate project. देखिए, अब देखिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन रेरा से ली गई है, और पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट देख लेते हैं. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट्स, कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और अ पार्ट देयर ऑफ इनटू अपार्टमेंट्स. एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को भी अगर अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और द डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स as the case may be, for the purpose of selling all or some of the said apartments or plots of building as the case may be, and includes the common area, the development works, all improvements and structures thereon, and even all easements, rights, appurtenances belonging thereto. So real estate project अगर हम exhaustively समझें इसको, तो even आप कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन को भी कन्वर्ट कर रहे हैं अपार्टमेंट्स में, तो भी वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर उसको फॉल होगा रेरा. आई एम नॉट गोइंग इनटू रेरा डिटेल्स मोर because I am not more, I'm not good at that also. I have just borrowed the definition from real estate regulatory Real Estate Regulation and Development Act, so that is reproduced here. Then we have what is RREP, residential real estate project. रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मतलब है कि वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिसमें कारपेट एरिया कमर्शियल अपार्टमेंट का जो है वो 15% से ज्यादा टोटल कारपेट एरिया से ना हो. फॉर एग्जांपल, आई एम डेवलपिंग ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिसका 1 लाख स्क्वायर फीट का टोटल कारपेट एरिया है, तो कमर्शियल एरिया उसमें 15,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अलग है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अलग है, कमर्शियल प्रोजेक्ट अलग है. ठीक है जी. सो 15% तक अगर कमर्शियल होगा तो भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ही माना जाएगा. अब ये प्रमोटर की डेफिनेशन है, दैट इज ऑल्सो बीन बोरोड फ्रॉम रेरा. A promoter is a person who constructs or causes to be constructed an independent building or a building consisting of apartments, or converts an existing building or part thereof into apartments for the purpose of selling all or some of the apartments to other persons, includes his assignees also. Even if he has assigned somebody, a promoter has assigned somebody, some other work contractor to develop the building, then he shall be considered to be the promoter, although that is more relevant in RERA, not in much in GST. बिकॉज असाइनीज में अगर असाइन कर दिया तो वो प्रमोटर नहीं रहा, उसके ऊपर जो रेरा की लायबिलिटीज है वो आएंगी या नहीं आएंगी, वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी. तो वो बेसिकली इस बात के लिए सिर्फ इन्होंने इंक्लूड असाइनीज यहां पर फ्रेज ऐड की है. सो दैट इज प्रमोटर. नाउ फ्रेंड्स, these are the transactions which are undertaken by the promoter. Promoter supplies goods, promoter supplies services. Goods in the form of material use, construction material use, services in the form of construction activity, and sale of land or undivided portion of land to the buyer. These three things are these are the three activities which are undertaken by the promoter. लैंड को 11/17 में आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सब्जेक्ट रखा गया है, ये आपके पास यहां पर आ गया. Now, immediately the first question arises, because if the land is kept outside the preview of GST, then whether, and please read it carefully, listen to me carefully here. If the land is kept outside the preview of GST, then whether promoter can take deduction of the actual value of land. Legislature
has specifically provided for value of land which will be deemed to be 1/3 of the gross amount irrespective of actual value of land. Such a presumption is grossly vague and ultra vires the intention of the law, as I said at the very beginning, and clearly the violation of the Constitution of India, where actual value of land in most cases will be more than the deemed value of land as computed under the provisions of said notification. Alternatively, now please listen to this advice very carefully. Alternatively, taxpayer can opt to pay tax only on actual value construction, that is after reducing the actual value of land from the total value of consideration. मतलब आपका कंसिडरेशन है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का, और आपको पता है कि मैंने 4 यूनिट बनाए हैं और उसमें मुझे 1 करोड़ का ही लैंड पड़ा है और 1 करोड़ का हर प्रॉपर्टी हर फ्लोर मैंने बेच दिया है, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड अगर आप इक्वली अपोर्शन करें तो 25 लाख रुपए आता है। तो 1 करोड़ माइनस 25 लाख आप कर दें और आप उसके ऊपर, ऑफ कोर्स दिस वुड यू डू ओनली व्हेन दिस टेकिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड गिव्स द बेनिफिट। यहां पर तो 1 करोड़ का 1/3 करेंगे तो वो 33 लाख हो गया, तो आपका टैक्सेबल 67 लाख ही हो गया। लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड लेंगे तो 25 लाख ही है। बट थोड़ा सा एग्जांपल फिट नहीं हुआ, बट इन द सेंस कि आप यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस, लेकिन it is also important to take home that it is a subject matter of litigation and it is already being challenged in various high courts. So you need to take this thing very carefully, take the conscious calculated call where the matter is of higher stake taxation tax value. Then you can always take a call of deducting the actual value of land instead of the deemed value of land that is provided under this 11/17 CPR. So although land के ऊपर अभी और मैं थोड़ा सा आपको कुछ केस लॉज भी दूंगा. Now what is affordable residential apartment? An apartment, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो फर्स्ट आपका फर्स्ट हमारा जो यहाँ था affordable residential apartment, that is there, which is linked, that is why it is being reproduced. Up to 31st March 2019, the rate of tax were these. These rate of tax are only for reference purposes and for old activities under real estate development which you have undertaken, which you have already conducted, applicable to those only. ठीक है जी? With effect from 1st April 2019, these are the rates. So we have divided, you can see the nature, we have divided under 4 categories, the activities. First is affordable residential apartments, then other residential apartments which is not affordable, then commercial apartments in RREP. Be very clear, ये वो RREP हैं जो 15% तक है टोटल कारपेट एरिया इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. ठीक है जी? अदर देन जो भी कमर्शियल और है जो कि इसके अलावा है, RREP के अलावा, आई मीन टू से द फुल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, दैट इज कमर्शियल अपार्टमेंट. वो भी क्या रेट है वो हमने यहाँ पर सारा रेट लिखा है आपके पास. रेट जो है अफोर्डेबल में, अगर हम एक पूरे कॉलम को पूरा देखें, एक टेबल को समझें, अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में 1.5% रेट है, वैल्यू ऑफ लैंड 1/3 है, इफेक्टिव रेट आता है आपका 1%. ठीक है जी? नोटिफिकेशन का कौन सा रेलेवेंट क्लॉज एप्लीकेबल है? देखिए मैं आपको बता दूं, I always say to everyone that 5 notifications are very important to you. So those who have already listened to me at various places must be knowing it. I am repeating at the cost. 5 notifications are very important for your possession. 1/17 CTR, 2/17 CTR, 11/17 CTR and 12/17 CTR. And last is 13/17 CTR. 1, 2, 11, 12 और 13. ये 5 नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आप जीएसटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप उसको थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं. इसकी अपडेटेड नोटिफिकेशन अभी भी जिसको भी चाहिए हो वो मुझसे पर्सनली मांग सकता है. मैं टैक्समैन के सौजन्य से आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन दे दूंगा. ठीक है जी?
तो 1/17 क्या बताती है? रेट ऑफ गुड्स बताती है। 2/17 एग्जम्प्टेड गुड्स बताती है। 11/17 रेट ऑफ सर्विसेज बताती है। और यही 11/17 इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम यही 11/17 रेफर करते हैं। इसके रेलेवेंट क्लॉजेस भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, कौन से पर्टिकुलर पॉइंट में कौन सा क्लॉज लगता है। और 12/17 जो बताती है वो बताती है एग्जेम्प्ट सर्विसेज के बारे में, कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है। 13/17 वो बताती है कि आपके पास रिवर्स चार्ज में सर्विसेज के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज हैं ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। देयर आर 16 सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर 13/17। तो ये 5 नोटिफिकेशन मित्रों आपके पास हमेशा होनी चाहिए। So effective rate is there. You can always see the first table, the first column of the table. Effective rate 5%, 1%. Then the relevant clause, whether ITC is available, answer is no. Then other residential apartment. What would be the other residential apartment, my dear friends? Can anybody tell me? कौन से other residential apartment है? कौन से अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है? जी मुझे टाइप करके बताइए, लिख के बताइए। अफोर्डेबल रेजिडेंशियल के अलावा कौन से रेजिडेंशियल अदर अपार्टमेंट हैं? रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की जो अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन से होंगे? प्लीज टेल मी। एब्सोल्युटली, जहां पर 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर या 45 लाख रुपए से वैल्यू ज्यादा होगी, हम उन अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। वहां पर रेट है 7.5%, 1/3 वैल्यू मिला है, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 5% इफेक्टिव रेट आएगा। हमने रेलेवेंट क्लॉज बता दिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी यहां पर भी नहीं है। अब मान लीजिए ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है या ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है या अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है जहां पर 15% से ज्यादा हमारा कारपेट एरिया का कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसमें कमर्शियल अपार्टमेंट्स का जो रेट होगा वो भी 7.5% होगा। 1/3 वैल्यू का डिडक्शन मिलेगा लैंड का, 5% रेलेवेंट क्लॉज बता दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको प्राप्त नहीं होगा मित्रों, नहीं होगा। देन कमर्शियल अपार्टमेंट्स जो अदर्स हैं आपके, जो सिर्फ केवल कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं, उनमें रेट ऑफ टैक्स आपका 18% है फ्रेंड्स, ठीक है जी। और 1/3 वैल्यू की डिडक्शन है, लैंड की 12% आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा मुझे सर। किसी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, ठीक है जी, कमर्शियल अपार्टमेंट का जो कारपेट एरिया है वो मोर देन 15% है, मोर देन 15% है। तो मुझे बताइए जो कमर्शियल अपार्टमेंट पर हम जीएसटी रेट लगाएंगे जब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कमर्शियल अपार्टमेंट बेचेंगे तो क्या रेट लगाएंगे बताइए। अवकाश जी कहते हैं 18% लगाएंगे, बहुत सुंदर अवकाश जी, एक्चुअली 18% ही लगाएंगे मित्रों, it would be 18% only. So now you got the real understanding. अब आप खुद से इस बात को, वनीता जी समझिए आप जी, जी बजा आनंद साहब, ललित आनंद जी, बहुत बढ़िया। बाकी मित्रों से भी मेरी गुजारिश है अपना कैमरा ऑन करके बैठे। मुकेश पुष्करना जी जरा अपना अपना चेहरा दिखाएं, बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए पुष्करना जी, अगर सुन रहे हैं मुझे तो, या फिर सिर्फ गीता पाठ लगा दिया और कहीं और किसी कार्य में व्यस्त हो गए हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, केवल गीता पाठ लगा के छोड़ दिया है, कान में पड़ता रहे, बुजुर्ग कहते हैं ना, कान में पड़ता रहे काफी है, समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी ये हमारे पूरे रेट्स हमें समझ में आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर किसी का कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, किसी का भी कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक आप अपना माइक भी ऑन करके पूछ सकते हैं, आई बिलीव, बिकॉज यू आर नॉट कंपल्सरीली kept on mute. Yes, please. You can ask me if you have any question. You can write in the chat box also. Harmanjeet Dhingra. As an individual, I am not engaged in construction activity. Will be liable to charge GST if I construct my own property and sell a part of my residential property before completion? No, sir. Answer is no. अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन कराते हैं, लेकिन जो भी डेवलपर, हरमनजीत जी, जो भी डेवलपर आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके देगा, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए, उसको आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। 18% जीएसटी लगेगा और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आप जो बेचेंगे वो आप नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बेचेंगे, इसलिए आपके ऊपर जीएसटी सर नहीं लगेगा। कोई और सवाल किसी का मित्रों? कोई भी सवाल है? यहां तक आप आगे मत बढ़िए। हरमनजीत जी थोड़े से आगे चले गए थे, ये जवाब मैंने दे देना था बाद में। यहां तक कोई रेट पे कोई टेक्निकल आपका कोई कि भाई इस वाला हमारा प्रोजेक्ट है तो इस पे क्या रेट लगेगा, ये वाला प्रोजेक्ट है तो क्या रेट लगेगा, ऐसा कोई सवाल आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस प्लीज। नहीं है? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जी। ओके, रिड्यूस रेट जो है वो ऑनगोइंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे तो ऑप्शनल था, लेकिन न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे कंपलसरी है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा जरा। रेस्टोरेंट पर क्या रेट लगता है जीएसटी का? सिंगल साहब, नवीन सिंगल जी, रेस्टोरेंट पे जीएसटी का रेट बताइए जरा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए सर। हरमनजीत जी कहते हैं 5%, बहुत बढ़िया। वनीता जी भी कहती हैं 5%, बहुत बढ़िया। अवकाश जी भी 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिल गया जी जवाब। मतलब 5% विदाउट आईटीसी, है ना? बहुत बढ़िया। प्रेमानंद जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा, 5% विदाउट आईटीसी, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहें। नवीन सिंगल जी कहते हैं 5 या 12। चलिए सर, 12 रेट अभी नहीं है सर। अच्छा, मैं एक आपको, हालांकि रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं तो मुझे रेस्टोरेंट्स, जो हॉस्पिटैलिटी है वो मेरी फेवरेट इंडस्ट्री है सिंगल साहब? तो क्योंकि खाने पीने की इंडस्ट्री है ना, तो इसलिए मेरी फेवरेट इंडस्ट्री है। अब मैं आपसे एक छोटा सा यहां पर भी सवाल पूछ लेता हूं। 18 कह रहे हैं सर, 18 भी सर नहीं है सर, समस्या 18 भी नहीं है सर। चलिए, अब मैं आपसे एक छोटा सा और सवाल पूछ लेता हूं बिफोर वी कंक्लूड द प्रीवियस क्वेश्चन। मुझे ये बताइए, मैं अपने ऑफिस से नीचे उतरता हूं, रोड क्रॉस करता हूं, सामने एक छोटा सा हॉकर खड़ा है, एक छोटी सी ठेली लगा के, जो छोले कुलचे बेच रहा है। लिसन टू मी केयरफुली। अब वो छोले कुलचे जो बेच रहा है, उसका धंधा जो है रोज का 25,000 रुपए का है। ठीक है जी? इसका मतलब जीएसटी की लायबिलिटी उसकी बनती है? बनती है या नहीं बनती है? बनती है। अब वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है, हम उसके सामने वाली बिल्डिंग में बैठते हैं, छोले कुलचे वाला कभी कभी हम मंगवा लेते हैं, तो हमसे बोलता है भाई साहब आप ही रजिस्ट्रेशन करवा दो मेरा जीएसटी का। अब मेरे पास सवाल आया कि उसके छोले कुलचे पे क्या रेट लगाऊं जीएसटी का? बताइए जी, कुलचे पे अलग लगाऊं, छोले पे अलग लगाऊं, या जो वो छोले प्रिपेयर करता है, कुक करता है, वो कैसे रेट किस तरह से लगाऊं? या छोले कुलचे पे रेट लगाऊं या रेस्टोरेंट का रेट लगाऊं? क्या रेट लगाऊं? रेस्टोरेंट है वो? यस और नो? वो रेस्टोरेंट है? यस और नो? जी, नो, नो, नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नो। माय डियर फ्रेंड्स, वो रेस्टोरेंट है।
रेस्टोरेंट की परिभाषा जब आप 11/17 में देखते हैं रेट ऑफ टैक्स में, आप मेरे साथ बने रहें, आपको बहुत ही आनंद आएगा। ललित जी आपको तो हमेशा आता ही, आई बिलीव, ठीक है जी। तो सर रेस्टोरेंट की जो डेफिनेशन है ना, परिभाषा जो है रेस्टोरेंट की, वो कहता है एनी ईटिंग ज्वाइंट, एनी ईटिंग ज्वाइंट विच इज देयर टू ऑफर फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एनी ईटिंग ज्वाइंट। अब क्या पहले सर्विस टैक्स में होता था विद एसी विदाउट एसी, ईटिंग ज्वाइंट, ईटिंग ज्वाइंट की परिभाषा देखें तो आप साइबर सिटी, साइबर वो कौन सी है, गुड़गांव साइबर सिटी जो है, वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन उनके पास खड़े होकर खिलाने की जगह है, बिठाकर खिलाने की जगह नहीं है। तो आप कहेंगे कि वो भी रेस्टोरेंट नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट इज द entity or a eating joint which offers food for human consumption. वेदर वो वहां पर खड़े होकर खाता है या साथ पैक करा के ले जाता है, does not make any difference. That shall squarely fall into restaurant services. और रेस्टोरेंट सर्विसेज पे क्या जीएसटी है? 5% विदाउट आईटीसी। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने, एग्जेम्पशंस के ऊपर रिसेंटली मैंने इसको रिसर्च किया बहुत एक्सटेंसिवली, क्लास के बाद किया ललित आनंद जी, इसलिए मैंने क्लास में नहीं बताया। मैं तो रोज कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं नया निकालने की। कहते हैं रोज कुआं खोदेंगे रोज पानी पिएंगे, क्यों सिंगल साहब? अब माय डियर फ्रेंड्स, वेन एवर देर इज एन एग्जेम्पशन, if it is an absolute exemption, it is binding upon the taxpayer. If it is subjective exemption, subjective concessional rate of tax, then it is not binding upon the taxpayer. There are multiple Supreme Court judgments I can provide you. I am repeating, listen to me carefully. अगर उन्होंने कहा कि फलानी एग्जेम्पशन है आपको, आप इस पर जीएसटी मत दें, तो ये एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन होगी, इसके साथ कोई भी कंडीशन अटैच्ड नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा आपको रेट ऑफ टैक्स की एग्जेम्पशन है 18% से ऊपर जितना भी है, 5% से ऊपर जितना भी है, आप देखेंगे ना सर, जो 5% रेट है वो 11 सेक्शन 11 याद है आपको? सेक्शन 11 कौन सा था? सेक्शन 11 था एग्जेम्पशन का। एग्जेम्पशन जो दी जाती है वो सेक्शन 11 के अंदर नोटिफाई करके दी जाती है, 11(1), 11(2), 11(3), और 11(3) में साफ साफ लिखा है कि जो भी एग्जेम्पशन एब्सोल्यूट होगी वो बाइंडिंग होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी एग्जेम्पशन एब्सोल्यूट होगी वो बाइंडिंग होगी। ये एग्जेम्पशन क्या एब्सोल्यूट है? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 5% से ऊपर जितना भी रेट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड, आपको याद है लास्ट कॉलम में शर्तें लिखी होती हैं 11/17 में, प्रोवाइडेड कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, even the Supreme Court in many cases had decided, even in case of one of the Reliance Industries judgment also, Apex Court way back in 1985 decided this fact that the exemption with respect to, which is conditional exemption, is not binding upon. मैं लूं या ना लूं मेरी मर्जी, लेकिन जो एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस हैं वो बाइंडिंग है टैक्स पेयर के ऊपर। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि ये लिटिगेटिव मैटर है, ये बहुत ही ज्यादा डिपार्टमेंट इस बात को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, इवन रेस्टोरेंट, ये जो 5% मैंने क्यों लिंक किया रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट को, आप समझिए। रियल एस्टेट भी दिखाना था दैट इट बिकम्स चीपर अंडर जीएसटी, फूड इंडस्ट्री भी दिखाना था दैट इट बिकम्स चीपर अंडर GST, although both have become dearer, not cheaper under GST, especially after the changes which they have brought in restaurant, food industry, as well as in real estate industry. And most interestingly, these two
industries of the economy are the largest employment generators, unfortunately, and they have done this thing with this industry. So 5% यहां भी रेट है और 5% रेस्टोरेंट में भी रेट है, बट वो कंडीशनल है. और मैंने आपको बता दिया, जो भी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, डिफरेंट हाई कोर्ट के जजमेंट मुझसे प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है जी. तो आप, ऑफ कोर्स, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू a extended understanding about the provision. Although if you really want to be on the positive side of the law, don't want to challenge it, then it is a conditional exemption. You have to comply with the conditions. These are the conditions. अगर ये कंडीशन कंप्लाई नहीं करना चाहता तो मेरे पास क्या फैसिलिटी है कि मैं 18% जीएसटी लगाऊं रियल एस्टेट एक्टिविटीज पे और आईटीसी. हालांकि डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी आफ्टर माय लाइफ फॉर दिस, बट इट इज अ सीरियस मैटर ऑफ लिटिगेशन. And many of us, even consultants, have not thought on these lines. Anyways, so I just wanted to have a mind teaser for you. So brought in. So these are the conditions. No ITC available except in case of landowner promoter. वो अलग बात करेंगे. And GST needs to be paid in cash only. Cash का मतलब ये नहीं है कि बोरी में भर के कैश ले आए वनीता जी. हाँ, कैश मतलब क्रेडिट से एडजस्ट नहीं हो सकता. जीएसटी में कैश का मतलब है क्रेडिट से एडजस्ट नहीं हो सकता. सो आईटीसी नॉट टू बी अवेल्ड, not I beg your pardon, ITC not availed to be reported in 3B, and nobody knows this fact कि जो भी आपने ITC अवेल नहीं किया है उसको रिपोर्ट करना है आपके 3B में. कैसे रिपोर्ट करेंगे? अवेल्ड एंड reversed same time, so that it is shown that this was available to me, but immediately I reversed it, I did not avail it. This is a condition to be complied. और मैं आपको एक और बात बता दूं exemptions में. एक आपके बेनिफिट की बात बताई है तो आपके एक अगेंस्ट की बात बता दूं. exemptions क्लेम करते हुए, ये exemption है. exemption का मतलब है exemption in rate. 18% रेट था, कहते जी above 5 or 7.5 the rate is exempt. If you see the notification is issued under section 11 also, and section 11 talks about exemptions. So एक और बात आपको बता दूं, if exemption is given, now let me tell you one other exemption. जिन्होंने, काफी सारे दोस्त मेरे मित्र यहाँ नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारा कोर्स किया था, तो हमने एग्जाम्पशन के ऊपर ये बात डिस्कस की थी. एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन फॉर देम एंड फॉर अदर्स, इट इज अ समथिंग डिफरेंट थिंग आई वांट टू पुट फोर्थ. एग्जाम्पशन में स्पेशल बात ये है मित्रों, इफ एन एग्जाम्पशन इज प्रोवाइडेड, ऑल्दो आई एम नॉट इन मच फेवर ऑफ एग्जाम्पशन, बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, न्यू लॉ, the importance of a particular sector, exemptions are provided, because exemptions create breakages, exemptions create leakages. There is the breaking of the free flow of ITC. If you ask me what is the ideal system of taxation, GST, ideal system, my dear friends, every transaction should be taxed. No exemption, zero exemption, and every ITC should be available. आप exemption लेते हैं, जैसे exemption लेते हैं आप, टैक्स नहीं चार्ज करते, लेकिन आपकी इनवर्ड सप्लाई जितनी भी टैक्सेबल है वो सारी आपका टैक्स जो है कॉस्ट बन जाता है. वो टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं पास हो रहा है, टैक्स तो पास हो ही रहा है. अब मैं, जैसे हमारे यहाँ पावर जो है वो एग्जेम्प्टेड गुड है. मैंने पावर की बात जो है आपने सुना मेरे मुंह से सही, एग्जेम्प्टेड गुड है. पावर इज कंसिडर्ड एज गुड, तो एग्जेम्प्टेड गुड है. अब एग्जेम्प्टेड गुड है, लेकिन पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, ये 3 एक्टिविटीज हैं. इन तीनों एक्टिविटीज में ह्यूज आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाता है, और वो सारा आईटीसी क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ पावर. कॉस्ट ऑफ पावर.
which is being absorbed by the industries, and 60% of the power is consumed by industries in the country. 40% is domestic power only. Interestingly, 60% of the power is consumed by the industry only. And that 60% of the power, which is, and in many industries, the power is as much as, cost of the power is as much as 2 to 5% also in some of the industries. And look at the input tax credit which has been absorbed in the cost, and that has been finally absorbed in the cost of manufacture of goods, and finally reaching to the consumer end user. Tax is becoming cost. How could it be? For any healthy economy, tax should not be a cost to the consumer. For final consumer only, for final end user only, the tax should be the cost. In any business to business transaction, tax should not be the cost for any healthy economy. Anyways, so if a conditional exemption, Ganesh Ratriji, if a conditional exemption is provided, then sir, if all those conditions are not fulfilled, exemption would be denied. अगर आप ये कंडीशन पूरी नहीं करते जो इस स्लाइड पे लिखी हैं, तो मित्रों आपको जो 1% या 5% की एग्जेम्पशन मिली हुई है रिड्यूस रेट की, वो डिनाई हो जाएगी. अगर वो डिनाई हो गई तो 18% पे टैक्स होगा और आईटीसी भी नहीं मिलेगा, और आपका एंड यूजर जो बायर है, अपार्टमेंट बायर, दैट इज ऑलरेडी गॉन. दैट इज ऑलरेडी गॉन. तो टैक्स बिलोंग्स टू दी सप्लायर. टैक्स की लायबिलिटी किसकी हो गई? सप्लायर. So next condition in ongoing projects where promoter opts for reduced rates, ITC needs to be availed and then reversed. Now this is also very interesting condition. Last one, 80% of input except cement and input services and not capital goods to be procured from registered persons. Except cement and capital goods. Capital goods 100% to be procured from registered person. Cement 100% to be procured from registered person. Other than that, 80% of the material used in the construction activity should be procured from the registered person. If not, then on the remaining portion, tax is to be paid under reverse charge by the promoter. Just take an example. 80% of inputs. Now purchases registered supplier से 100 है, इसके ऊपर जीएसटी 18, टोटल 118, गवर्नमेंट रेवेन्यू 18. अगर आपने अनरजिस्टर्ड सब, क्योंकि टोटल तो 18 है आपका, इसका आईटीसी तो मिलना नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू 18. अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू 0, क्योंकि आपके ऊपर जीएसटी तो लगा ही नहीं. What if the conditions are not met? Then tax under RCM to be paid by the promoter on the supplies which fall short of 80%. Following shall not be considered for RCM under 80% category. अगर आप डेवलपमेंट राइट की सर्विसेज लेते हैं, मैं ऑनर हूं, लैंड ऑनर हूं, आप प्रमोटर हैं, मैंने आपको सर्विस दी फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स. You are the recipient. That service, inward service, shall not form part of 80% category. Long-term lease of land, in other words, development right or floor space index, in other words, same thing. Power अगर आप लेते हैं तो वो 80% की कैटेगरी में नहीं आता, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स नहीं देना. और हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस अगर आप लेते हैं तो आपको जीएसटी 80% की कैटेगरी में नहीं आता, रिवर्स चार्ज में नहीं देना. पावर आपने ली, पावर तो आपको कोई भी नहीं दे सकता, जो ट्रांसमिशन कंपनी से सिर्फ वही दे सकती है, उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं देना. हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है आपने खरीदे, इसके ऊपर नहीं देना. एफएसआई या टीडीआर पर नहीं देना. कैपिटल गुड शैल नॉट बी this thing, not covered under 80% limit. GST is required to be paid under RCM on capital goods received from promoter from unregistered suppliers for construction of project. 80% की लिमिट में नहीं है, लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा तो उसको आपको 100% जो है उसके ऊपर, तो आपको मतलब इन द सेंस कैपिटल गुड्स हमेशा रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद रहे हैं, वरना आरसीएम में टैक्स पे करना है.
ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप मेरे ख्याल इसको पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अगला लैंड, बिकॉज टाइम इज नाउ रनिंग, सो इसलिए मैंने वो पढ़ा नहीं एग्जाम्पल, मैंने आपको बात कर दी है सारी। डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ प्लॉट्स मैं बता चुका हूं आपको, तो आपके ऊपर किसी भी सिचुएशन में प्लॉट अगर आप डेवलप करते हैं, उसको सेल करते हैं, टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज अ शेड्यूल 3 आइटम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी। नाउ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं इसे। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन रियल एस्टेट। इसके तरीके क्या है? या तो ये एरिया शेयरिंग हो सकता है, या ये रेवेन्यू शेयरिंग हो सकता है, या ये दोनों हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा लैंड है, ठीक है जी, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक की लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समबडी। यहां पर हमें नजर आ रहे हैं नवीन सिंगल सर नजर आ रहे हैं। सिंगल साहब कहते हैं भाई राजेंद्र तेरा ये लैंड है, मैं डेवलप कर दूंगा। मैं ठीक है सिंगल साहब, कर दीजिए डेवलप। अब मैंने कहा सिंगल साहब मुझे कंसिडरेशन कैसे देंगे आप? अब ना यहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना है सारी बातें। इनकम टैक्स की कोई बात नहीं करूंगा, पूछिएगा मैं, आउट ऑफ सिलेबस है मेरा, बिल्कुल जीरो। अब मैं सिंगल साहब कहते हैं भाई ठीक है मैं तेरा डेवलप कर दूंगा, ये तेरे पास फॉर एग्जांपल 2000 गज का प्लॉट है ना, मैं डेवलप कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है साहब, मेरे को कंसिडरेशन कैसे दोगे? कहते यार जैसे तेरी मर्जी, तू छोटा भाई है, तू जैसे चाहेगा वैसे कर देंगे। या तो एरिया शेयरिंग ले ले, मतलब जो है एक 2000 गज है, 500 गज तेरे लिए डेवलप कर दूंगा 4 फ्लोर, है ना। या रेवेन्यू शेयरिंग ले ले, या उसमें 2000 गज में 250 गज के जो हैं वो, फॉर एग्जांपल हम 20 फ्लैट बनने, हम ऐसे ले रहे हैं 20 फ्लैट बनने, तो उसमें 5 फ्लैट तेरे को दे दूंगा। या तू रेवेन्यू शेयरिंग ले ले, 20 फ्लैट बनने हैं, 100 करोड़ रुपए आएंगे, 20 करोड़ तू ले लियो, 25 करोड़ तू ले लियो। मैंने कहा ठीक है सर, या दोनों ले ले, एरिया भी ले ले, रेवेन्यू भी ले ले, जैसे मर्जी ले ले। तो दिस इज दी कॉमन वे ऑफ अरेंजिंग दीज थिंग। अब ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है? ये सारी ट्रांजैक्शन एक ही टेबल पे लिख दी है मैंने आप। इससे ज्यादा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती, और हर ट्रांजैक्शन जो यहां लिखी है उसकी पूरी जीएसटी की लेविएबिलिटी हम ढंग से चेक करेंगे अभी आने वाले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, 40 मिनट में। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन आता है जी, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट बाय लैंड ओनर टू द प्रमोटर। सिंगल साहब हमारे प्रमोटर है, मैं लैंड ओनर हूं, डेफिनेशन आपको पता। मैंने जब तक इनको अपने प्रॉपर्टी के लैंड के ऊपर डेवलपमेंट राइट नहीं दूंगा, he cannot do anything, he cannot enter into my property, he cannot go for install a बिजली का meter, he cannot get it municipal permissions, कुछ भी नहीं कर सकते ये वहां पे। so I have to literally give all the rights to single साहब, even for selling it also to single साहब। this is a practical situation, I am telling you everything, practical situation what is happening। So I have to give all the rights to single sahab, else he cannot do anything. So this is the first transaction, I have given something to single sahab. Nothing has happened. Merely a piece of paper is entered. A contract is entered that Naveen Singhal Sahab is going to be the promoter, I am the landowner, this is the our arrangement, and he is going to construct it, and these are the covenants of the agreement. Now this is also a transfer. Although what am I transferring him? Nothing. If at all, if I am transferring, the use of land I am transferring. The right to land I am transferring. Because और तो कुछ है ही नहीं उसमें। हमने तो वहां पर 2000 गज में 20 फ्लोर बनाने, अगर मान लो उस 2000 गज में एक मेरा बंगला बना भी हुआ है और आसपास सारा खाली पड़ा हुआ है, तो वो तो टूट फूट होनी है। तो आई एम नॉट ट्रांसफरिंग एनी राइट टू दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग और दैट बंगला विच इज कंस्ट्रक्टेड। और कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई थोड़ा मैं इनको कह रहा हूँ कि जो 2000 गज में पार्क है उसमें आलू प्याज उगा लेना। आई एम नॉट गिविंग एनी राइट, आई एम गिविंग राइट बिलोंगिंग टू लैंड ओनली, प्योरली लैंड।
So this is the first transaction. Then second transaction involved in the collaboration agreement is construction of units by promoter for the landowner. Now, Singhal Sahab is the promoter, I am the landowner. Now, he will be constructing building for me also, na? So eventually he is going to give service to me also. Service of construction activity. This is the second transaction. Sale of units by promoter or landowner to the third parties. If our arrangement is that, sir, 5 flat mine, 15 yours, Singhal Sahab. So 15 he would be selling to the third party. 5 maybe, 4 I may keep, 3 I may keep, 2 I may sell. I may do that. So I would be selling it. Then the last type of transaction under this would be payment of consideration basis specified percentage of revenue earned on sale of units. In addition to, listen to me carefully, friends. In addition to construction, Singhal Sahab said, भाई तेरे को 100 करोड़ का माल है, 200 करोड़ का माल है, तेरे को 50 करोड़ कैश दूंगा, है? और जो है 5 तेरे को फ्लैट दूंगा. तो 5 फ्लैट की सर्विसेज दी सर ने मुझे कंस्ट्रक्शन की और साथ में 50 करोड़ रुपए दिए. अब सिंघल साहब की बात हो रही है तो छोटी बात तो हो नहीं सकती ना सर. 100-200 करोड़ की बात नहीं होगी तो मजा ही नहीं आएगा. सिंघल साहब का इंटरेस्ट देखो कितना बना है. बात हो रही 200 करोड़ की. मैं कहता तो 2 करोड़ कहते छोड़ राजेंद्र तू भी यार, है ना. सो दैट वे इन्होंने मुझे कंसिडरेशन दिया इन कैश और साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके दी मेरे लिए. सो दीज आर दी 4 ट्रांजेक्शंस. इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन बनती है तो मुझे बता दीजिए. ठीक है जी. अब आगे बढ़ते हैं जी. एक एक ट्रांजेक्शन को पकड़ते हैं. पहली ट्रांजेक्शन डेवलपमेंट राइट. Now, what is development right? Permission given by the landowner for the development of the land building. Apart from transfer of physical possession, landowner also authorizes the promoter to do. ये मैंने आपको कुछ ना covenants agreements से उठाकर लिख दिए हैं आपके सामने. To do all such acts, apply before authority for development of land building. Create mortgage on the land in order to raise finance. Advertise the project in such mode as may deem fit to the promoter. Sell a lot, lease, license, etc. The sellable area. जो मेरी सिंगल साहब से बात है, भाई साहब 15 फ्लैट आपके, he may sell it. Even before construction starts, he may sell it, allot it, lease it, license it. He may do whatever he wants to. And other spaces available in the project. In nutshell, landowner gives all rights over the land and gives full authority to the promoter to enjoy the land in the manner of his choice. For all purposes, therefore, the landowner extinguishes its interest in the land in favor of the promoter on execution of the collaboration agreement in consideration of the construction of its share of building. जो भी मेरे लिए भाई साहब ने कंस्ट्रक्शन करना है, जो मुझे रेवेन्यू कैश में देना है, उसके बदले में मैंने प्रैक्टिकली सारे अधिकार सिंघल साहब को दे दिए. That is the collaboration agreement. Are you with me? Yes, please, friends. चलिए. कुछ एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बड़ा सिंपल है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए रिप्रोड्यूस किया है. कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, ये 18 आइटमें हैं, 18 वर्क्स हैं जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं. नाउ जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स. सेल ऑफ लैंड है. पहली बात तो ये सेल ऑफ लैंड कहते हैं कि जी सेल ऑफ लैंड तो ना गुड्स है ना सर्विसेज है. क्लॉज 5 ऑफ शेड्यूल 3. सो सेल ऑफ लैंड इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी. Land has not been defined in the act, but land is defined in the constitution also. Section 3A of the Bombay Land Revenue Code. Land includes benefits to arise out of land. मेरे पास एक खेत पड़ा, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, मैंने ललित आनंद जी को दे दिया. ललित आनंद जी ने उस पर कल्टीवेशन किया. कल्टीवेशन करके इन्होंने वो आजकल क्या मतलब अभी तो खैर वो लीगल नहीं हुआ, लेकिन चलिए उसको नहीं लेते हैं जो लीगल नहीं हुआ उगाना, है ना. तो इन्होंने कुछ एक सेलेबल प्रोडक्ट कल्टीवेट करके प्रोड्यूस किया. तो मैंने इनको दिया था लैंड. लेकिन अगर कोई बेनिफिट विच इज अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज लैंड ओनली.
और आप अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर और गुड्स की डेफिनेशन की अगर आप जीएसटी में बात देखें तो गुड्स इंक्लूड स्टैंडिंग क्रॉप्स, गुड्स इंक्लूड एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ provided it is to be severed, it is to be severed from the earth before it is sold. अगर पेड़ हैं अर्थ पे, उसके ऊपर फ्रूट्स हैं, तो पेड़ जो अर्थ पे ट्रीज हैं वो पार्ट ऑफ लैंड है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई चीज आप पेड़ काटते हैं और उस लकड़ी को बेचते हैं, सो दैट बिकम्स गुड्स because it is to be severed from the land before the supply. Severed मतलब अलग करना. Are you with me? थोड़ा सा यहाँ पर क्या, लैंड जो है ना हमेशा से कॉम्प्लेक्स मैटर है. जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रहा है वो हमेशा से कॉम्प्लेक्स मैटर रहा है. इवन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ गई उसके लिए, आर्टिकल 366 29 कैपिटल ए. सो इसलिए थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहे, आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है. इसमें मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हैं जिसमें मैं ये प्रूव करने वाला हूं कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. So land includes benefit to arise out of land, attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, and also shares in or charges on the revenue or rent of villages or other defined property portions of territory. That is the Bombay Land Revenue Code. That is the land. So land includes anything benefits arising out of land. ठीक है अवकाश जी? जी देखिए, जो कैमरा ऑन करके रहेगा मेरे सामने, मैं उसका नाम भी लूंगा. नाम लूंगा तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होंगे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होंगे तो पढ़ेंगे भी. तो इसलिए कैमरा ऑन करके बैठिए मेरे सामने. राजप्रीत सिंह नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन राजप्रीत सिंह नजर नहीं आ रहे, सिर्फ नाम नजर आ रहा है राजप्रीत सिंह का. राजप्रीत सिंह हमारे एनडीएससी पार्ट 1 वाले. चलिए देखिए क्या होता है वर्चुअल मीटिंग्स की. हम ये समझ गए हैं वर्चुअल मीटिंग्स की एक कॉम्प्लेक्सिटी है. स्पीकर को भी तब आनंद आता है जब सामने वाला 2-4 बारी सारी लाता है. समझ रहे हैं आप? तो उसे लगता है हाँ यार कुछ समझ आ रहा है लोगों को हमारे. ठीक है ना? नहीं तो ऐसे तो बोल ली जाए, मुझे क्या पता लग रहा है समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा. बोल बाल के खत्म हो गई क्लास, हो गया टाइम पास जी. चलिए, सो दैट वे नो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में अब हमने कहा जी लैंड जो है दैट इंक्लूड्स बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. एक ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डेवलप एक केस में बताया. इन केस ऑफ छेडा हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2007 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि डेवलपमेंट राइट्स एज अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज कंसिडर्ड टू बी लैंड. डेवलपमेंट राइट्स जो हैं वो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है. अगर कोई चीज बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है तो वो लैंड ही है. इस जजमेंट को सबोदे बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी फॉलो किया गया. फर्दर इन केस ऑफ डीएलएफ लिमिटेड, चंडीगढ़ सी स्टैट ने भी एक बात कही. उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट राइट्स शैल बी कंसिडर्ड टू बी arising out of land and shall accordingly shall get covered under the ambit of immovable property. Eventually transfer of development right is benefit arising out of land. यहां पर देखिए 2-3 और मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी डाला है आपके लिए. अब कहते हैं कि ट्रांसफर, पहले तो हमने सिर्फ डेवलपमेंट जीएसटी इंप्लीकेशन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की बात की. क्या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट इज अ सेल ऑफ डेवलपमेंट राइट? सेल हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर जीएसटी लॉ. वेरियस जो डेफिनेशंस हैं, सेल जो है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और टाइटल इन ए प्रॉपर्टी कहलाता है. इन केस ऑफ सुनील सिद्धार्थ भाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेट द वर्ड लैंड not just includes full title in land but also rights which gives benefits associated with it. Eventually this judgment also 1985
talking the same line that land benefits arising out of land includes benefits arising out of land. So लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात मैं आपको बता रहा हूं यहां पर. उसके बाद जर्नल क्लॉजेज एक्ट में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, shall include land and benefits arising out of land. So TDR is nothing but rights arising out of land and thus an immovable property. In following decisions of courts, it is also held that development collaboration agreement is effectively an agreement of sale of land, wherein the landowner transfers all rights in land to the developer and also extinguishes all rights in such land in favor of the developer. ये देखिए, ये जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, एक अहमदाबाद ट्राइब्यूनल का जजमेंट है. So, in view of the above aforesaid discussion, a conclusion can be drawn that the transfer of development right is akin to the sale of land only. So, if it is sale of land only, then should it be taxed? No, simple, it should not be. Government intended to levy GST on development rights by way of following notifications. Notification number 4/18, 25 जनवरी 18. ये वो दिन है जहां पर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर अपनी इंटेंशन दिखाई थी, टाइम ऑफ सप्लाई को बताकर. उसके बाद 4/19 कंडीशनल एग्जेम्पशन दिया गया ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स को विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स. फिर उन्होंने कहा 29 मार्च 19 को ही एक नई दूसरी नोटिफिकेशन 5/19 रिवर्स चार्ज हैज बीन मेड एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स. तो उन्होंने कहा कि टैक्सेबल भी है और टैक्सेबल है अंडर रिवर्स चार्ज. लेकिन 25 जनवरी 2018 से पहले गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया था कि क्या डेवलपमेंट राइट्स टैक्सेबल है या नहीं है. कुछ लोग कहते हैं कि 25 जनवरी 2018 से पहले नहीं बताया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि टैक्सेबल नहीं है. कई लोग मुझसे पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पे एक सवाल आता है. मुझसे पूछते हैं कि सर फलानी एक्टिविटी टैक्सेबल होगी क्या, सप्लाई होगी फलानी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी बताई उन्होंने और मुझे कहा कि सर बताइए क्या ये सप्लाई है. मैं कहता हूं हाँ जी सप्लाई है. वो कहते सर जी कहां लिखा है. अब मैं पड़ जाता हूं सोच में. मैं कहता हूं भैया कहां लिखा है, अरे ये तो डिडक्शन ऑफ लॉ है, ये तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है. सप्लाई की परिभाषा में आता है, कंसिडरेशन है, शेड्यूल 3 में नहीं आता है, तो इसलिए ये सप्लाई है और टैक्सेबल भी है. इसलिए बहुत सारी बातें जरूरी नहीं होती हैं कि लिखी हो तभी वो होंगी. जो प्रेजेंट लॉ है उसको अगर आप इंप्लीमेंट करते इन इट्स ट्रू स्पिरिट, सो द लॉ एक्चुअली गिव्स डायरेक्शन फॉर मेनी थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड. तो सामने वाले का ये आर्गुमेंट हो सकता है 25 जनवरी 18 से पहले नहीं लिखा तो नहीं लिखा, क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर लिखा नहीं था और फिर भी टैक्सेबल था तो 25 जनवरी 18 के बाद स्पेसिफिकली लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, नोटिफाई करने की क्या जरूरत पड़ गई. नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ द टैक्सेबल पर्सन एंड वैल्यूएशन मैकेनिज्म वर ऑलरेडी देयर, then what necessitated the government to notify it again? So the conclusion may be drawn that taxable person and valuation mechanism was never prescribed in the law earlier. आप मेरी बात का जरा ध्यान से सुनिएगा. दिनेश कुमार बंसल के केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है ना ये बड़े ही टेक्निकल टॉपिक्स हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्विस टैक्स रिजीम की बात बता रहा हूं, 2016 का जजमेंट है मित्रों, दिनेश कुमार बंसल का. हमारे परम मित्र पुनीत अग्रवाल जी हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया था एंड ही वॉन दिस केस एंड बहुत ही बढ़िया जजमेंट था, वी वर आल्सो इन्वॉल्व. तो उसमें क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा
कि आप सर्विस टैक्स लगा रहे हो ऑन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मैं आप सबका अटेंशन चाहूंगा जी इस पर, जो भी काम कर रहे हैं जरा 2 मिनट रुक जाइए। उन्होंने कहा कि आप सर्विस टैक्स लगा रहे हो ऑन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर टैक्स लेवी कैसे होगा, वैल्यू कैसे होगा, ये एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, कोई मशीनरी प्रोविजन ही नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर 2016 में, क्योंकि 2017 से जीएसटी आ गया इसलिए बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है ह्यू एंड क्राई नहीं मचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि व्हेन देयर इज नो मशीनरी प्रोवाइडेड, वैल्यूएशन सिस्टम प्रोवाइडेड, लेवी फेल्स। गोविंद सरन गंगा सरन का ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, जो भी मुझसे चाहेंगे मैं दे दूंगा आपको। उस जजमेंट को जीएसटी प्रैक्टिस करने वाले, इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस करने वाले, उस जजमेंट को एक मतलब मैं कहूंगा कि भागवत गीता की तरह पढ़े। उस जजमेंट में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली हमें बताया है कि किसी भी फिस्कल, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या प्रोसेसेस लॉ में होने चाहिए टू मेक इट इफेक्टिव। लेवी होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, कलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबल टू पे पर्सन, जो पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स का डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, रेट क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज मिस है तो लेवी फेल्स। अब मैं आपको एक गोविंद सरन गंगा सरन का एक इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं। 16 सबसेक्शन 2 का दूसरा प्रोवाइजो है हमारे सीजीएसटी एक्ट में, जहां पर ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार बात बताने वाला हूं। गोविंद सरन गंगा सरन और दिनेश कुमार बंसल दिल्ली हाईकोर्ट का इंप्लीमेंटेशन। मित्रों, 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो है कि 180 दिन में अगर आपने अपने क्रेडिटर की पेमेंट नहीं की तो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देंगे। ठीक है जी, सबको पता है। अब मैं ये कहता हूं कि उसका इंप्लीमेंटेशन लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड होता है रूल्स में। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन है, प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन कानून में लिखी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, ये बातों को लगाकर, इस सिस्टम को लगाकर आप भविष्य के, आपको तो पता है कि मैं हमेशा आपको मछली पकड़ना सिखाता हूं, मछली पकड़ के नहीं देता। और जो हमारे वेजिटेरियन भाई बंधु हैं उनके लिए आलू प्याज उगाना सिखाता हूं। ठीक है ना जी। आप कहोगे जीएसटी ना हो गया भैया, ये तो सब्जी वाला हो गया बंदा है। इट शुड बी सिंपल ना, द डिपार्टमेंट ऑलरेडी मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, सो वी शुड अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। सो इफ वो कहता है प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी है कि जो भी रूल्स में लिखा जाएगा वो प्रिस्क्राइब्ड होगा। रूल्स में लिखा गया, सेक्शन रूल 37 में लिखा गया 16(2) सेकंड प्रोवाइजो के लिए कि अपने जीएसटीआर 2 में एज आउटपुट टैक्स ऐड कर देना जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। मुझे बताओ जीएसटीआर 2 कभी आया? अगर मेरे पास कानून में मशीनरी नहीं है तो क्या मैं 16(2) के सेकंड प्रोवाइजो को इंप्लीमेंट कर सकता हूं? तो मित्रों, मैं आपको इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं, गोविंद सरन गंगा सरन, रेड विद दिनेश कुमार बंसल, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है जी। सो आप बिल्कुल, जहां भी वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं था, जहां पर टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन ही नहीं किया गया था, बाद में 25 जनवरी 18 के बाद आपने किया है, उससे पहले तो टीडीआर कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकता। उससे पहले ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकते। ये बात एज श्योर एज डे एंड नाइट है। चलिए जी, in case of JDA agreement, the developer is basically rendering construction services only without transfer of land.
भाई नवीन सिंघल साहब मेरे लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लैंड तो मेरा ऑलरेडी यही है. So in such case it should be purely works contract service जो सिंगल साहब मुझे दे रहे हैं. The government recognizes such service as construction of complex service. Therefore its valuation should not be done in the manner laid down in para 2A of notification 3/19. rather इसकी वैल्यूएशन रूल 30 के अनुसार होनी चाहिए, कॉस्ट प्लस 10% ओनली. रिलेटेड पार्टी है ना जी, आपको वैल्यूएशन पढ़ाया था ना सबको, रिलेटेड पार्टी है तो वैल्यूएशन रूल रिजेक्ट हो जाते हैं और वहां चला जाएगा वो बेस्ट जो रूल है उसका रूल 30-31. तो मित्रों ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट पीपल आर नॉट कंसिडरिंग टुडे. बट अनलेस यू डू नॉट टेक something different things before the honorable courts which is genuine, which is logical. मैं हमेशा कहता हूं एडवोकेट्स, हमारे यहाँ तो सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहन जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा कहता हूं एडवोकेट्स अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं. दे ऑलवेज से वी आर द असिस्टेंट्स टू द कोर्ट. whenever you listen to a good advocate, they will always say that the courts have given us the responsibility to assist them to reach to the justice. My dear friends, I always say that we chartered accountants are assistants to the nation, assistants to the taxpayer, assistants to the trade industry. They have actually appointed us to assist them to correctly implement the law, to correctly read the law for the taxpayers and the administrators. That's our responsibility, to read correctly and implement correctly. And wherever you find a gap, मुझे कल किसी का फोन आया, अब क्या सवाल था उनका, नैनीताल से फोन था, मैं सवाल भूल गया उनका, लेकिन मैंने जवाब क्या दिया, जो इंपॉर्टेंट जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं. हाँ, सवाल क्या था जरा ध्यान से सुनिएगा सारे आप. मैंने 2018 में, ध्यान से सुनिए, 2018 में मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया है शलभ, 2018 में इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया और उसके बाद अगले एक साल बाद मेरे ख्याल 2018 का क्रेडिट लेने का टाइम लिमिट होता है 31 मार्च 18 का जो टाइम लिमिट था वो सितंबर 18 उसके निकल जाने के बाद मैंने क्या किया, जो गलत 2 लाख रुपए का क्रेडिट ले लिया था 2018 में, जनवरी 2019 में उस 2 लाख के क्रेडिट को मैंने अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट में से, जो जनवरी 2019 का 5 लाख का क्रेडिट था फॉर एग्जांपल, 2 लाख का मैंने पाया कि गलत क्रेडिट 2018 में ले लिया है, मैंने 5 लाख के क्रेडिट को 5 - 2 करके क्रेडिट लिया 3 लाख का. 3 लाख. डिपार्टमेंट नोटिस्ड मी. उन्होंने कहा भैया आप सुनिएगा जरा, तुम्हारी तरफ का ये शलभ जी है ना, यूपी वाले, मैंने बोला भी, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, यूपी वाले अफसर हमारे इंटेलिजेंट अफसर है, वो सोचते हैं जो भगवान कृष्ण ने ना सोचा होगा अब तक. अब उन्होंने क्या सोचा आप सुनिए, वो कहते हैं, नोटिस आया, कहते भैया ऐसा है, तुमने 2019 जनवरी में 2 लाख का क्रेडिट रिवर्स किया. पहली बात तो तुमने रिवर्स प्रॉपरली नहीं किया. जो 5 लाख का क्रेडिट तुम्हारा था, तुमने क्रेडिट अवेल किया 3 लाख का, उसका टाइम निकल गया तुम्हारे क्रेडिट को 2 लाख और अवेल करने का. अब ऐसा करो, 2 लाख जो 2018 का गलत क्रेडिट अवेल किया था उसको तो पे कर दो, और ये 2 लाख का क्रेडिट अब तुम ले नहीं सकते. 2 लाख ऑलरेडी रिवर्स कर चुका हूं जनवरी 2019 में, अब वो 2 लाख मुझसे और पे कराना चाहते हैं. अब मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, 4 लाख का मैटर है, आप चले जाओ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में. किसी एडवोकेट साहब का ही फोन था. मैंने कहा भाई साहब आप चले जाओ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में. मैं मानता हूं कि 4 लाख रुपए में 1 लाख रुपए आपकी रिट पिटीशन फाइल करने की कॉस्ट लग जाएगी, मे बी आपको बेनिफिट सिर्फ 2 लाख का हो, लेकिन ये बात पक्की है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको बेनिफिट देगा. क्योंकि आप सोचिए, मैंने क्रेडिट तो रिवर्स किया है ना भाई, अपने इनपुट को रिड्यूस करके रिवर्स कर दिया, इंस्टेड ऑफ रिवर्सल सेपरेटली दिखाया.
क्रेडिट तो रिवर्स किया ही ना। और इनका सर्कुलर तो 26 दिसंबर 2017 का सर्कुलर था, जिसमें ये खुद से कह रहे थे कि अपने आउटपुट बढ़ाना है तो आईटीसी घटा दो, आईटीसी बढ़ाना है तो आउटपुट बढ़ा दो, आईटीसी बढ़ाना है और तो आउटपुट बढ़ा दो। इस तरह का मैकेनिज्म ये खुद बता रहे हैं हमें। तो फिर एक्सेप्ट, और मैं यूपी में बहुत ज्यादा देख रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के सवाल आते हैं जहां पर ये देखा जाता है कि भाई इसने तो, अब मैं आपको बताऊं, एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे फोन किया, कहते हैं ऐसा है, सीनियर ऑफिसर ने, कि इस पार्टी ने अपना आईटीसी घटाना था, इसने आईटीसी घटाया नहीं, आउटपुट बढ़ा दिया, तो ये तो गलत कर दिया इसने। मैंने कहा भाई साहब, आईटीसी नहीं घटाया, आउटपुट बढ़ा दिया, बात तो एक ही है, टैक्स तो पे कर ही दिया ना उसने आपको एक्स्ट्रा। नहीं नहीं नहीं, इसको आईटीसी घटाना चाहिए था, मैं इसको सम्मन दे रहा हूं। मैं दे दो जी सम्मन, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो आपको बता दिया, प्लाव्यू दे सम्मन दे दिया छोटी सी बात पे उसको। एनीवेज, सो लेट्स कम बैक टू द ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स ओनली। सो आप इन सब ये जो वैल्यूएशन है, ये भी प्रॉब्लम है, इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह वैल्यू होना चाहिए, लेकिन इसको किया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्विस की तरह वैल्यू, विच इज इनकरेक्ट। कॉम्प्लेक्स सर्विस में लैंड इंक्लूड होता है, लैंड इज ऑलरेडी विद द लैंड ओनर। Land is already with the landowner. You cannot transfer the land because you don't have the land at all. Okay. Now, moving ahead. Now what? Now, अब हम actual questions पर आ रहे हैं, हमने बिल्कुल background बना लिया सारा. What is the liability to pay tax on transfer of development right by landowner? Landowner. Single saab, the developer, I am the landowner, I am transferring the development right. What is the liability of me? GST applicable on supply of TDR. However, the responsibility to pay tax is not on the landowner. In case of TDR, developer is required to pay tax under reverse charge. Now, deemed deduction, amount of value of land, which we have already discussed this thing. What is the rate on TDR used for construction of residential project for developer under reverse charge? Supply of TDR or FSI or long-term lease used for the construction of residential apartments in a project that are booked before issue of completion certificate or first occupation is exempt. Read it carefully. Residential apartments booked before issue of completion or completion certificate or first occupation is exempt. Because if you have booked residential apartments before construction, then those shall be, answer me, those shall be taxable. If the value of supply of construction activity of real estate project would be taxed, so no tax on TDR, no tax on collaboration agreement, transfer of development right, not collaboration agreement. I take word back. What is the rate of tax on TDR used for construction of commercial project for developer? Used for construction of commercial apartments shall attract GST rate of 18%. TDR. Liability in case of transfer of development rights for 30 years or more. Now, person liable to pay tax, promoter under reverse charge, time of supply, date of completion certificate of project, or its first occupation, whichever is earlier. यहां पर consideration paid in form of construction activity and consideration is paid in monetary consideration. So residential apartment, time of supply is date of completion certificate, or commercial apartment, date of payment या date of immediately following 60 days. क्योंकि यहां पर जो है whichever is earlier, or if not determinable from above, then date of entry in the books of accounts, that is 13(3). Now what is the value? Value of what?
value of basically transfer of development rights. Value of similar apartment charged by the promoter from independent buyers. Single Saab gave me 5 apartments. He sold 1 out of 15 apartment to an independent buyer nearest to the date on which development rights are transferred to the promoter. That shall be the value first. अब आप यहां पर देखिए, इस वैल्यू में जो नवीन सिंगल जी किसी भी इंडिपेंडेंट सेलर को, इंडिपेंडेंट बायर को ट्रांसफर करेंगे, उसमें वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उस वैल्यू ऑफ लैंड को भी, उसी वैल्यू को मेरे लिए भी टीडीआर की वैल्यू में भी टीडीआर की वैल्यू बना दिया डीमिंग फिक्शन से। इस टीडीआर की वैल्यू में तो वैल्यू ऑफ लैंड भी इंक्लूडेड है, और लैंड तो मेरा ही है, तो मुझे कैसे सर्विस दे दोगे मेरी चीज की? प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन, मैंने कहा था ना 50 करोड़ रुपए प्लस 5 फ्लैट, तो दोनों को जोड़कर वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। रेट आएगा 18% अंडर रिवर्स चार्ज। ये एग्जेम्पशन मैंने आपको बता दिया। एक इंटरेस्टिंग बात देख लीजिए यहां पर कि जो ये टीडीआर का 18% रेट है, इसका जो ग्रॉस टैक्स है, इसका जो ग्रॉस टैक्स है वो 1% या 5% वैल्यू ऑफ अनबुक्ड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। अनबुक्ड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का अर्थ है जो भी अपार्टमेंट्स बुक नहीं हुए हैं, मतलब जिसके लिए कोई भी एडवांस रिसीव नहीं हुआ है। अगर किसी के लिए एडवांस रिसीव हुआ वो तो टैक्सेबल हो गए, जिसके लिए एडवांस रिसीव नहीं हुआ वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा। अगर अनबुक्ड रेजिडेंशियल है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स जो अनबुक्ड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर टीडीआर में रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको एग्जेम्पशन बता दी ना, शुरू में एग्जेम्पशन बता दी, दिस इज द एग्जेम्पशन। जस्ट अ सेकेंड। ये कि अगर आप ऐसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बेचने के ऊपर टीडीआर की बात करते हैं जो कि ऑलरेडी बुक हो चुका है कंप्लीशन से पहले, अगर वो बुक हो चुका है तो टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो टीडीआर रिवर्स चार्ज में टैक्स्ड नहीं है, क्योंकि टैक्स आपको केवल एक ही बार लगना है, या तो टीडीआर अंडर रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज आपके बायर के ऊपर 1% या 5%। टैक्स इन्होंने कितना लेना है? 1% या 5%। तो अगर वो बुक नहीं हुए, सारे अनबुक्ड पड़े और आपने कंस्ट्रक्शन के बाद बुक किए, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो एग्जेम्प्ट होने के बाद टीडीआर टैक्सेबल हो जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज। जैसे टीडीआर अंडर रिवर्स चार्ज टैक्सेबल होगा, उस टीडीआर 18% पे टैक्स होगा। 18% की वैल्यू कैन नॉट एक्सीड 1% और 5% ऑफ टैक्स ऑन वैल्यू विच इज सोल्ड टू द इंडिपेंडेंट बायर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले, मान लीजिए 5 फ्लैट थे जो कि अनबुक्ड थे, 1-1 करोड़ के, 5 करोड़ के, उसके ऊपर 1% टैक्स है, मान लीजिए 5 लाख। जो टीडीआर ट्रांसफर हुआ वो फ्लैट एक ट्रांसफर की वैल्यू ले रहे हैं, वो है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ पर 18% बनता है 18 लाख रुपया। इस पर टैक्स मैक्सिमम कितना लग सकता है? 5 लाख रुपया, क्योंकि 1% ऑफ द अनबुक्ड फ्लैट की वैल्यू पर जो टैक्स है उससे अधिक टीडीआर पर रिवर्स टैक्स नहीं हो सकता। ये आपको मैं समझाना चाहता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी? सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसमें जो आपको समझना है। चलिए, हाँ, लायबिलिटी इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एरिया पर्टेनिंग टू लैंड ओनरशिप। अब साहब प्रमोटर है, लैंड ओनर मैं हूं, मेरे शेयर, मेरा जो एरिया है उसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सर ने बिना पैसे लिए किया मुझसे, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी है। लायबल कौन है टैक्स देने के लिए? प्रमोटर नवीन सिंगल। टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वैल्यू, total amount charged for similar apartment in the project nearest to the date minus 1/3 value on account of land. That is sensible, क्योंकि लैंड को यहां हटा दिया, लेकिन टीडीआर को टैक्स करते हुए लैंड को नहीं हटाया।
और लैंड पे भी टैक्स जो है जमा करवा रहे हैं, हालांकि मुझसे नहीं ले रहे हैं, लैंड ऑनर से नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रमोटर से वैल्यू ऑफ लैंड पर भी टैक्स 18% जमा करवा रहे हैं। ठीक है जी। और रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? रेट ऑफ टैक्स जो है जिस जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी पे रेट लग जाएगा। Liability arise in case where completion certificate is not issued by the competent authority. In some parts of the country, it takes considerable time or years to take issuance of such certificate, or not issued even after 10-15 years of actual completion of the project. We have to follow purposive or functional interpretation to remove such absurdity and to give effect to the provisions. The occupancy certificate or the first occupation will be considered as point of liability for such purposes. फर्स्ट ऑक्यूपेशन कैसे हो सकती है? फर्स्ट ऑक्यूपेशन प्रूफ करने में आपको बिजली, पानी, सीवरेज, दरवाजे, ये कुछ बातें हैं। अगर आपकी बिल्डिंग में ये सब है तो वहां पर फर्स्ट ऑक्यूपेशन प्रूफ की जा सकती है। आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी, कोई व्यक्ति एंटर हुआ तो उसको पोजेशन लेटर दिया, पोजेशन लेटर साइन कराया उससे, सो दैट वुड प्रूव द फर्स्ट ऑक्यूपेशन, वेयर यू कैन नॉट गेट द, इन दिल्ली इट इज डिफिकल्ट टू गेट द कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, completion of construction certificate. In various parts of the country it is difficult. So first occupation can be proved with the help of bijli, pani, sewerage, darwaje, safety. Even if there is no lift, not to worry, not to worry, क्योंकि सीढ़ियां बन गई है तो लिफ्ट की जरूरत नहीं है, चौथी मंजिल पे भी आराम से पहुंचा जा सकता है। नॉट अ बिग टास्क, ऑफ कोर्स इट इज अ टास्क बट नॉट अ बिग टास्क। ठीक है जी। सो यू कैन प्रूव द फर्स्ट ऑक्यूपेशन। सो liability in case of sale by the promoter or the landowner, जिसकी यूनिट है वो लाइबल है, प्रमोटर की यूनिट है, प्रमोटर लाइबल है, लैंड ऑनर की यूनिट है। टाइम ऑफ सप्लाई, जिस समय सप्लाई हो या पेमेंट मिल जाए, whichever is earlier. वैल्यू, टोटल अमाउंट चार्ज, सिंपल, लेस 1/3. रेट, अफोर्डेबल हाउसिंग, अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, जो भी आपके पास। What rate? Works contract. Services provided in relation to affordable residential apartment would be taxed 18 or 12. The rate of tax would be 12 because provided the carpet area of affordable residential apartment should not be less than 50% of the total carpet area of all apartments in the project. So ये works contract का separate rate defined है। अगर आपका total carpet area का 50% तक या उससे अधिक आपका रेजिडेंशियल, अफोर्डेबल रेजिडेंशियल है, तो वो, जैसे कि नवीन सिंगल साहब ही हमारे डेवलपर है, मेरे पास प्लॉट है, एग्जांपल बदल देते हैं। मैंने कहा साहब अफोर्डेबल रेजिडेंशियल यूनिट बनाओ। अफोर्डेबल रेजिडेंशियल यूनिट अगर मेट्रोपॉलिटन है तो 60 स्क्वायर मीटर, 45 लाख। ठीक है जी। अब अगर 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ और उसमें से 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया अफोर्डेबल बन गया, तो जो नवीन सिंगल साहब कंस्ट्रक्ट करने वाले बिल्डर है वो 12% वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का रेट लगाएंगे, आईटीसी अवेलेबल होगा इंस्टेड ऑफ 18%। ये मैं बात आपको सब बता चुका हूं। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, आखिरी टॉपिक फॉर द डे। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट मींस अ सेल्फ कंटेन्ड रेजिडेंशियल यूनिट which is designed for use only or principally for residential purposes for one family. One family. Naveen Singhal साहब has got 3 sons. इनके पास एक प्रॉपर्टी है रिवाड़ी में, 500 गज की प्रॉपर्टी है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए किसी को हायर किया, 3 बेटों के लिए और एक अपने लिए 4 फ्लोर बनवाए 500 गज के। Single, principally for residential purposes, but for one family. Whether Naveen Singhal sir's family, which is consisting of 3 sons and he, would be considered as a single family, one family? Yes or no? Yes or no? Yes, please. Monica Bajaj says yes. Ganesh Raturi says yes. Singhal साहब आप तो yes कहोगे ही, आप ही की प्रॉपर्टी है। बट ठीक है, yes is correct. It would be considered as single residential unit. The moment it is considered as a single residential unit, the tax rate shall be
12%। जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर इनके लिए काम करेगा वो 12% लगाएगा और उसको आईटीसी भी मिलेगा, आईटीसी भी मिलेगा। और अगर प्योर लेबर है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की, इन्होंने केवल लेबर का ठेका दे दिया, 0 रेट, नील, कोई टैक्स नहीं, एग्जेम्प्ट, एंजॉय। ठीक है जी। एंड द लास्ट स्लाइड व्हिच यू हैव बीन मस्ट बी वेटिंग फॉर लॉन्ग। सो यहां पर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, राजप्रीत सिंह जी पूछ रहे थे कि क्या ये पीपीटी मिलेगी। राजप्रीत जी आपके दर्शन तो हुए नहीं, पीपीटी देना थोड़ा मुश्किल है। अब हुए दर्शन शायद, अब फोटो लगा रखी है परमानेंट मेरे ख्याल राजप्रीत, नहीं अब हुए दर्शन है। हाँ अब मिल जाएगी पीपीटी राजप्रीत जी आप। थैंक यू सर। जी सर, आपका कोई सवाल यहाँ पर किसी का भी है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज मैं उससे पहले बीका जी कामा स्टडी सर्कल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी कन्वीनर मैडम को और बाकी सभी पदाधिकारियों को, और स्पेशल थैंक्स मैं अपने पिता समान सुनील अरोड़ा जी को देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अवसर का कि मैं अपनी छोटी समझ जो भी सब्जेक्ट के ऊपर है वो मेंबर्स के साथ बांटूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यार बाकी तो ठीक है, तूने पिता समान क्यों बना दिया मेरे को यार, ऐसा थोड़ी, दिस इज नॉट जस्टिफाइड यार, अब पिता समान बना दे मेरे को यार। सर हम जानते हैं सर, आप पिता मेरे कभी भी नहीं दिखोगे, हम हमेशा आपको आइडियल लेते हैं, फिटनेस में, पढ़ाई लिखाई में, सब चीजों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो, मतलब पिता समान बना के मेरे को तो बुजुर्ग बना दिया तूने यार, ऐसे थोड़ी होता है भाई। चलिए, एनीवे थैंक्स लॉट। यस, सो आई थिंक Kanchan and Divya, yes, Paramjeet, whoever is handling this. Yeah, Akash जी प्लीज गो अहेड। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक क्वेश्चन था, वो जो आपने उसमें बताया 80% इनपुट वाले में, जो आरसीए 80% से अगर कम हो जाता है तो उसमें जो 80% हमें टोटल लेना है, उसमें एक तो वो मतलब ये आपने डीजल वगैरह सब बाहर कर दिए, तो जो और हैं जो हमारे जीएसटी में नहीं आते हैं, पीएनडएल के आइटम, सैलरी, ट्रैवलिंग, ये भी नहीं लेने होंगे 80%, खाली जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है उसका लेना होगा, ट्रेडिंग वाले का। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। देखिए सर, इनपुट्स जो हैं, अब जैसे सैलरी है, दैट इज इनपुट, नीदर इनपुट नॉट इनपुट नॉर इनपुट सर्विस। ठीक 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 है जी, तो आपको कंसिडर नहीं करनी है। बाकी जो एक्सक्लूजन्स हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। बाकी आपको जैसे सीमेंट है, और आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, स्टील है, और जो भी आप सैनिटरी हार्डवेयर जो भी आप यूज करते हैं, दैट शैल ऑलवेज फॉल इनटू 80%। लेबर नहीं सर, लेबर नहीं सर, खाली मटेरियल हो गया सर। इनपुट सर्विसेज, अगर इनपुट सर्विसेज भी आ जाती हैं, सर्विस आ जाती, बिल्कुल आएगी सर, आएगी, लेबर भी आएगी, वही मेरा डाउट था, लेबर भी आएगी सर। जी, और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। अच्छी बात यह है कि हमारे मित्र बिना सवाल के भी रुकते हैं, क्योंकि मेरे पास सवाल हो या ना हो, किसी दूसरे के सवाल से मैं जवाब जरूर पा सकता हूं। क्यों आकाश जी? जी, now I would request the management committee of Bikaji Kama for taking it further. I don't think so now any more question is there. Thank you very much. Divya, you are not audible, I believe. We are not able to hear you. No, sir. No, not yet. Anybody able to hear Divya? I am not able to hear her. हाँ, नहीं सर, नहीं मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप परमजीत मैडम के रूम में चले जाइए। Yes, so I think it was excellent deliberation from Rajinder, very exhaustively covered the entire gamut of real estate.
although I am associated with real estate taxation of under income tax, but GST तो in fact मैंने कभी समझने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं समझी, ना ज़्यादा कष्ट किया समझने के लिए. But then I must say that I think taxation of real estate, especially JDAs in case of income tax, is complex. But this is GST is even more complex as compared to that. And this, because of the complexity, I thought probably I should keep away from it and leave it for the experts to handle it. Okay, so do we have Kanchan, Divya, who's handling? I mean, who's responding? Yes, anybody from Bikaji Kama Place who's concluding the program? Okay. So I think some connectivity problem there. So we don't get to hear anybody. So Paramjeet, I think you are there. Anyway, so chalo, let me do it on their behalf. So we are really thankful to Rajinder, and we'll I think probably have more occasions when we'll have him. Although possibly I think a few months down the line, तो आपका वो शुरू हो जाएगा whatever election code. So as a result of this, probably you may not be able to speak from the official forums. But Yes. I think before that, possibly we'll try and see if we can squeeze in another program on GST. So we are really thankful to all the participants here for participating in complete 2 hours. I think we have a lot of senior members as well as young, mix of the members are here. So we are really thankful to all of you to be participating actively in this particular program. And do let us know in case you need any specific topic or any specific speaker. You're most welcome to let us know, so that I mean, Bikaji Kama Place group is there, so you can put it in the WhatsApp group if you want somebody, some speaker or some topic. We'll get it organized. And GST pay, possibly we'll try and get Rajinder ji again, so that he can enlighten us on this complex subject. And thank you, Rajinder. Thanks a lot. And thank you all the participants. Thank you very much, sir, for this opportunity. It's a pleasure listening to you and pleasure to have all of you here. Thank Sir, you. I am delighted to share this virtual dice with you, sir. Thank you very much. And Rajinder, just one last request. Please send your PPT, because I think a lot of members have asked for it. So you can Yes, send sir. the PPT to us. We'll forward it to all the members. For तो sure, members sir. को याद भी रहेगा, because आपने हर स्लाइड पे अपनी फोटो भी डाली हुई है, तो सारे members को आपकी याद भी रहेगा राजेंद्र का. जी जी, ठीक है. धन्यवाद. So please share the PPT. इसी बहाने सबके पास आपकी फोटो भी पहुंच जाएगी. Thank you, Thank sir. you. Thanks Thank a you, lot. sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir.